Hello, guys. We are going to post a video once again. I know we have been away for a couple months. We have been a little busy with vacations and work, but now we are going to post videos much more regularly once again. We have another very interesting news. We have a new team member, that is Aditya Mutha. He is from a very small town, and he has been very interested in physics right from a very young age. He has been studying physics very enthusiastically, and he also represented India in Asian Physics Olympiad. He later sat for JE and bagged a rank of 541 and got admission in IIT Bombay in mechanical engineering. And then, after getting into mechanical engineering at IIT Bombay, he didn't take the placement seriously because he wanted to pursue his interest in physics, and that's why he started training students for Olympiads and IIT entrance exams. Then later on, he thought that okay, let's explore a field which opens many opportunities. I guess you would already be knowing about that field. It's management. So he sat for CAT, and he got 99.96 percentile, which is a very high percentile. And he just prepared for 2.5 months, which is quite impressive. And then after that, he also applied for some universities in Europe, and he got an admit from ESCP, which is there in Paris. So he has decided to move forward with ESCP, keeping aside IIM Calcutta, which many people are recommending him to go for. So this is quite unconventional, and this is what our channel is known for. So let's continue with Mutha, and he is gonna interview a recent GATE candidate who got a very good rank in GATE. So yeah, so let's get over to Mutha. So hi guys, I have Ashish Lalwani here with me. Hi Ashish. Hi, Aditya. So to give a bit of a background, Ashish scored in GATE this year. He got an All India rank of 18. 18, am I correct? 17. 17. 17, Oh that my God. Okay, 17. And which trade? Computer science. computer science, yes. Computer science, which is in the most competitive trade of GATE, he got AR-17. So it's really commendable, and I really applaud you, Ashish. Congratulations. And we would like Thank to you. know a bit more about your result, the way you have, progressed. And so let's start. So first of all, can you just start by, introducing yourself, like where you're from, how did you start, and how So, I'm a computer science engineer. I did my engineering from Thodoma Shani Engineering College. That's a local college here in Mumbai, based in okay, Mumbai. okay. And I am from Mumbai. So, like, I mean, if you look at my name, it's quite obvious कि मेरे को सिंधी कोटा में ही मिला था वहाँ पर. तो Okay. हाँ, so like that gives out a brief कि मेरा जेई कैसा था, like Okay. totally messed up, but वो टाइम पे yes, मेरे को बहुत ये था, like I had that intention of getting into IIT, but hard work zero थी. Okay. So I gave JEE along with you, मतलब सार्थक के बैच का हूँ मैं. Okay. 2014 में उसमें लाइक खराब गया, कुछ 62 आया आई गेस. देन उसके बाद मैंने थर्मल शानी ज्वाइन किया. देन उसके बाद फिर से दिया अलोंग विद फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग. ओके. एंड उसमें भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ. हाँ, एंड आफ्टर दैट आई गॉट अ जॉब एट आई वाज वर्किंग फॉर सेक्लोर. It's a cyber security firm. A B2B है, so not much heard of. Then उसके बाद somehow masters का plan था, because like यहाँ पर as usual जो outsourcing वाले jobs होते हैं या even product based company, even though Secular is a product based company, उसके अंदर after a certain point, like after a year, उतना ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था growth wise. Okay. लाइक कोई तुम कोड लिख रहे हो, उसको कोड रिव्यू होता है, कोड
देन तुम्हारे को उसको मॉडिफाई करना है, स्ट्रक्चर बराबर होना चाहिए, तो वो था, एंड टेस्ट केसेस लिखने हैं, नथिंग न्यू टू लर्न। तो ठीक है, वो डिसीजन हुआ कि मास्टर्स करना है, देन फुल ऑन मास्टर्स के साइड पे फोकस किया, जीआरई दिया, उसमें भी मचा है, लाइक समवॉट 169 था क्वांट्स आई गेस, टोटल कितना है जीआरई में? 322, तो 152 वर्बल था। नाइस, अमेजिंग। और तो देन व्हाई डिडंट यू अप्लाई आउटसाइड? I did. That decision to go abroad, it came to my mind somewhere in 2019. ओके तो 2019 में प्रेप चालू किया 2020 के लिए, एंड एडमिट भी आया, एंड एडमिट आने के लाइक द लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन, जब मेरे सारे एप्लीकेशंस खत्म हो गए, उसके 2 दिन बाद आई लेफ्ट जॉब इन एक्सपेक्टेशन कि मेरे को मिल जाएगा, ओके एंड मिला भी, बट फिर कोविड आ गया। सैड। हाँ, नॉट टू इंट्रूड, बट कौन से कॉलेजेस के लिए तुमने अप्लाई किया था, कहाँ पे मिला, वो भी थोड़ा एक प्रोसेस अगर आप बताओगे। तो वो तो सिंपल रहता है, लाइक आई गेस तुम जीआरई दो, टोफल दो, देन यू हैव टू गेट लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम कॉलेज के प्रोफेसर्स। या वो मैंने भी किया इस साल, मैंने पेरिस के लिए अप्लाई किया था। मेक एन एसओपी, देन अप्लाई अब्रॉड। तो उसमें मैंने आई गेस 11 यूनिवर्सिटीज इन यूएस एंड 4 इन कनाडा किए थे। ओके तो लाइक उसमें भी बहुत जुगाड़ रहते हैं, अगर तुम एजेंट्स के थ्रू जाओ तो एप्लीकेशन फी माफ हो जाती है। ओके तो उसमें भी मैं जोश में बड़े बड़े कॉलेजेस ही डाल रहा था, लाइक कैलिफोर्निया वाले जो एकदम कार्नेजी मेलन वगैरह। हाँ, सीएमयू, कार्नेजी मेलन। हाँ, लाइक वो ही लेवल के डाल रहा था, इवन तो मेरी उतनी औकात थी नहीं। लाइक जीआरई अच्छा था, बट पॉइंटर वाज लाइक 7.8 था, तो और वो भी थर्ड टियर यूनिवर्सिटी है। ओके तो होपलेस था। I got an admit from a university that my friend says above my par. Like, even though मेरा 7.8 है, they say because of GRE somewhere around 8.5 के आसपास का यूनिवर्सिटी मिल गया मेरे को नसीब से। Okay. तो things were going good actually. Even last year जब like I left my job, तभी भी things were going good कि अच्छे decent यूनिवर्सिटी से एडमिट था, अच्छा एरिया, अच्छा चल रहा था। देन कोविड स्ट्रक, तो फिर घर पे भी थोड़ा ये हो गया कि कोविड के टाइम पे क्यों जा रहे हैं, एंड देन तो हाँ, देन आई गेस कोविड में आई ट्राइड फॉर अ फ्यू मंथ्स जॉब ढूंढने के लिए। ओके देन एक्चुअली फिर एक क्या था, इसके पैरेलली एक अलग स्टोरी है कि मेरे कॉन्वोकेशन पे मैं एक फ्रेंड से मिला था। ओके कि क्या कर रहा है, तो ही सेड मैं आईआईटी दिल्ली में मास्टर्स कर रहा हूँ। तो उसने मेरे को बताया था गेट का, तो उससे मेरे दिमाग में एक था कि गेट भी एक ऑप्शन है। ओके तो फिर जब कोविड आ गया, घर पे बैठा हूँ, कुछ है नहीं, जॉब्स ढूंढ रहा हूँ, बट कॉल्स आने का सब लटक चुका था। हाँ, तो ऑप्शन नहीं था, तो लाइक ठीक है, गेट साइड बाय साइड चालू कर देते हैं, एंड देखते हैं अगले 2-3 महीने में अगर जॉब मिल गया तो फिर छोड़ देंगे गेट का पढ़ाई। तो नॉर्थ कैरोलिना का मैंने तो प्लान ऐसे था, नॉर्थ कैरोलिना को 1 साल डिफर कर दिया। वो लोग ने ऑप्शन दिया था, तो आई पेड दैट बेस अमाउंट रहता है उनका, डिफरमेंट का करेक्ट, वो पे किया, एंड देन दे गिव मी एन ऑप्शन टू डिफर बाय अ ईयर। तो वो एक सॉलिड बैग था मेरे पास कि कुछ भी हो जाए। अभी भी है तेरे पास? तो वो अभी भी है? हाँ, अभी भी है। अभी भी है, और मैंने अभी तक उनको ना नहीं बोला, नहीं, ना बोलना भी मत उस चीज के लिए, मतलब एज अ फ्रेंड आई कैन सजेस्ट दैट टू यू। वो पड़ा हुआ है अभी भी। और फिर ऐसे था कि साइड में जॉब ढूंढते हैं, जॉब लग गया तो अच्छा 1 साल मस्त छाप लेंगे, और नहीं लगा तो गेट का पढ़ाई चालू रखते। गेट फूट गया तो I mean, anytime IIT looks better than NCSU. Like, true. I mean, it's true के NC से मेरे को US में opportunities मिलेंगी, and I'll get a, you know, ज़्यादा पैसे वाला market मिलेगा. But then IIT का stamp is somewhat like के
इंडिया में मेरे को कोई रोक टोक ही नहीं है. इंडिया में मैं किधर भी जाऊं, बोलूं मैं IIT से हूं, तो मेरे को सब ऐसा लाइक सल्यूट करेंगे काइंड ऑफ. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. मतलब ये जो डिसीजन है ना कि मैं यूएस जाऊं या आईआईटी से करूं अपना मास्टर्स, ये और एक हाँ. बड़े फैक्टर पे डिपेंड करता है. जैसे ये जो जिस सिचुएशन में तू है अभी, उस सिचुएशन में मैं भी हूँ हाँ. अभी. कि आई हैव हाँ. अ शॉट एट IIM Calcutta and I have an हाँ. admit at ESCP Business School in Paris. ओह. तो करेंटली damn. मेरा ये सिचुएशन है. दोनों भी तगड़े स्कूल है. ESCP बिजनेस स्कूल वन ऑफ द बेस्ट इन मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड, एंड IIM कैलकाटा तो इंडिया में कोई रोक टोक ही नहीं. IIT प्लस IIM. हाँ, तो एग्जैक्टली. हाँ, तो ये तुम्हारे फ्यूचर प्लान मतलब वेयर डू यू सी योरसेल्फ पे भी डिपेंड करता है. जैसे इफ यू प्लान टू stay nearby your parents, nearby your home, nearby your family, makes sense to invest your time in IIT. Otherwise, if you हाँ. just look out to gain some exposure, go out, meet different people, travel to new places, get some hands-on experience in various places around the world, then it makes sense to have a foreign degree. Let's say US या यूरोप की कोई डिग्री कर लो. तो तुम्हारा क्या थॉट है इसके पीछे? थोड़ा डाइसी है. आई कांट से कि अब्रॉड जाना वो लाइक इन योर केस बोथ द कॉलेजेस आर रियली गुड, बट इन माय केस नॉर्थ कैरोलिना स्टैंड्स एट समवेयर 200 रैंकिंग लिस्ट में. IIT ऊपर And- उससे. IIT. हाँ, IIT बॉम्बे कुछ 50s में है. तो इट मेक सेंस कि मैं IIT बॉम्बे जाऊं एक तरीके से. True. एंड लाइक हाँ, कॉस्ट वाइज भी देखूं अगर मैं तो ऑब्वियसली बहुत Yeah. फर्क है यार. अरे हाँ, IIT में कोई फीस ही नहीं लग रही, तुम्हें 12,000 का Exactly. स्टाइपेंड चालू हो जाएगा. एग्जैक्टली. तो वो एक अलग ये है लाइक फीस अगर तुम्हारे को देखना है. हाँ, एंड द क्वालिटी ऑफ हाउ यू डू इट. लाइक IIT तो अच्छा है, बट ये अगर मैं कोई बिट्स गोवा से एमटेक कर रहा हूँ तो मेक्स नो सेंस. फिर नॉर्थ कैरोलिना बेटर है. In IIT also, like it makes sense to do your masters from Bombay or Delhi, Kharagpur, एग्जैक्टली. like Madras, Kanpur. ये 5 जो टॉप IITs है, उनमें से हाँ. मास्टर्स करने में कोई पॉइंट बनता है. So this हाँ. invites another question, Ashish. Many people write GATE. A very few people among the top 100 rankers write GATE to like get into an IIT to do their masters. Most of them write to get their jobs in a PSU. जो PSU में हाँ. जॉब्स मिलती है, ONGC, आई गेस हाँ. CLB है, मतलब काफी सारी PSUs है. सारी है शायद से, सारी PSU हाँ. हायर करती है. तो तुम्हारा क्या थॉट है? whether you will choose an IIT or you will choose to work in a government organization? Look, इसमें भी लाइक मेरा पर्सनल व्यू, इफ यू आर आस्किंग, आई एम गोइंग टू IIT फॉर श्योर. Okay. IIT या IISc बैंगलोर है, which is definitely done because ये दो में ही जाना है. It was already fixed के मास्टर्स करना है, साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में करना है to get a good skill, then इंडस्ट्री में अप्लाई करेंगे या PhD करेंगे, वो बात की बात है. ओके, PhD का ऑप्शन में बाद में भी परस्यू कर सकता हूँ. ओके. हाँ, वो तो है. तो IIT बॉम्बे में हाँ. बहुत सारी आती है यार प्लेसमेंट्स में. Correct. सब आते हैं, ये ONGC से लेके DRDO तक हाँ. सब आते हैं. तो सब आते हैं. तो अभी फिलहाल तो मेरा फोकस क्लियर है कि बस स्किल IIT डेवलप जाना. करने पर्टिकुलर डोमेन में बस. IIT बॉम्बे प्रेफरेबली. हाँ, मैंने दोनों किया है एक्चुअली. तो लाइक हम लोग को जो ये लाइक जिनको पता नहीं है, IISc बैंगलोर करके एक यूनिवर्सिटी है which is far better than not far better बहुत but खतरनाक almost है. at par with IITs. But IISc Correct. college, IISc Bangalore is an amazing college. For those who don't know, just visit the Wikipedia page, just visit the website. The Bharat Ratna from India, Professor CNR Rao, was a chair professor over there. So your first preference is IISc. What do you say? Hey, my first preference is not yet decided. So there is another stream which is quantum technology. हाँ, quantum computing. तो उसमें हाँ करेक्ट. तो उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, बट तो मैं उसको और एक ऑप्शन बना के रखना चाहता हूँ. और अभी 1 महीना है लगभग मेरे पास टू डिसाइड कि लाइक
May 13th को they will upload it on a common portal. सो May 13th को तुम्हारा प्रोसेस हाँ. चालू होगा काउंसलिंग का? May 13th को मुझे कॉल्स आएंगे एंड उसमें फिर आई थिंक मेरे पास ऑप्शन रहेगा whether I want to hold and wait or whether I want to accept or reject any admit. तो तो I think तुमने एडमिट्स कितने भरे हुए हैं तुमने? ऑप्शंस कितने मैंने भरे? 4 IITs किए, बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर एंड मद्रास एंड एक IISc बैंगलोर किया. ओके, और टॉप पे कौन सा डाला फर्स्ट प्रेफरेंस पे? नहीं, we don't have a preference as such. प्रेफरेंस नहीं रहता? हमें एक कॉमन पोर्टल पे आ जाएगा, तुम्हें ये यूनिवर्सिटी से एडमिट आया है, तुम एक को चूज कर लो, बाकी सब ऑटो रिजेक्ट हो जाएंगे. ओके, तुम्हें तो सबसे ही आ जाएगा यार एडमिट. हाँ. IIT बॉम्बे से आ जाएगा, IISc बैंगलोर से आ जाएगा. हाँ. लेट्स लीव दैट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. अगर मेरे को कोविड से बरस उड़ गया. नहीं, द नंबर्स शेयरली डिफाइन कि तुम्हें सबसे आ जाएगा. देयर इज नो इशू इन दैट. हाँ, लेट्स होप आ जाए. ओके. तो तब तक का मेरे पास एक क्वांटम टेक्नोलॉजी में एडवांस करने का एक ऑप्शन मैंने बना के रखा है बैंगलोर में. एंड बॉम्बे इज ऑब्वियसली व्हाट आई वांट टू परस्यू, साइबर सिक्योरिटी का. तो लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट, फिर उसके हिसाब से आई विल टेक अ जजमेंट कॉल. Okay, that is really nice to know, Ashish. Let us back up a bit. I want to ask you about how you prepared, like specifics. Which books did you refer to? Which classes did you join? Or like which sources did you follow through to get such an amazing rank in GATE this year? So for class, so I initially started doing it on my own. मेरे पास एक कोई बंदा है जिसके मेरे पास वीडियोस हैं. Okay. तो and he is a well-known professor in computer science domain for GATE. But then 15 days later, actually वो वीडियोस 2014 में किसी ने डाउनलोड किए थे. Okay. और उसी ने डाल दिया. थोड़ा पुराना वीडियो है और कैसे चाइनीज विस्पर जैसा है, कुछ डेटा गुम हो गया और कुछ करप्ट है. तो वो जो थोड़े गैप्स थे वो आ रहे थे. समवेयर अराउंड 15 डेज में मेरे को रियलाइज हो गया कि इससे मैं कर सकता हूँ बट ये पूरा पोर्शन कवर नहीं करेगा. तो मैंने मुंबई में एक क्लासेस है विजन गेट करके, एंड अपेरेंटली AR1 भी उधर से ही है. ये साल का. यू नो हिम? तो हाँ, ही इज माय फ्रेंड. तो वो क्लासेस का एक्चुअली जो मेरा फ्रेंड है जो IIT दिल्ली से अभी ग्रेड कर रहा है, उसने मेरे को रेकमेंड किया कि ये सर का कर, लाइक हिज परफॉर्मेंस हैज बीन इंक्रीजिंग ऐसे एंड रिजल्ट्स भी बढ़ते चले आ रहे हैं. तो आई टुक अ लीप ऑफ फेथ एंड मैंने ज्वाइन किया विजन गेट. तो हाँ, तो he is the guy, वो काफी अलग लेवल के हैं. Like in the domain of computer science, he has a good command over it. तो उन्होंने काफी अच्छे से गाइड किया. तो मैं कैसे करता था, मैं जो ये बंदे के लीक वीडियोस थे वो देखता था, उससे मेरा बेस क्लियर हो जाता था एक तरीके से. देन जो ऊपर के एडवांस स्टफ रहते थे वो मैं विजन गेट में जाके सर को पूछता था. कि मतलब सर से ही सब क्लियर ये होता था, डाउट क्लियरेंस होता था. और जो भी रहता था सब सर से करा लेता था. तो बेस एक तरीके से मेरा स्ट्रॉन्ग था एंड ऊपर का पार्ट सर कवर कर लेते थे, ऐसा था. एंड एंड ही गाइडेड मी थ्रू लाइक द होल प्रोसेस जो 10 महीना था मेरा. तो समवेयर अराउंड मई में मैंने स्टार्ट किया पढ़ना. बाय I think September 15th, I was done with 90% of my syllabus. Oh. क्योंकि हाँ, कुछ था नहीं मेरे पास, तो I used to put in somewhere around 4.5 hours every day. हाँ, तो 4.5 hours to 5 hours full concentration पर डालता था. And 15 तक का मेरा 90% syllabus हो गया. Then उसके बाद सर ने मेरे को बोल दिया कि
तो द सिलेबस वो करना कैसे था, वाज लाइक यू हैव टू लाइक पहले तो लेक्चर्स अटेंड करो, उसको अच्छे से समझो, जो पूरा बेस है वो कंसेप्ट क्लियर करो. देन एक गेट ओवरफ्लो का एक बुक आता है, इट्स वेरी वेल नोन इन गेट का एरिया, लाइक जो भी गेट के लिए पढ़ते हैं वो. तो उसका एक बुक आता है, वो उसमें क्या होता है, सारे आई थिंक 1989 से लेके अब तक का जितने भी क्वेश्चंस पूछे उसका एक लाइक कंपाइल्ड वर्जन है पूरा. ओके ओके. पास्ट पेपर्स, टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स बोल सकते हैं, मतलब जैसे आईआईटी जेई का भी रहता था अपने टाइम पे, वो वैसा वैसा. हाँ हाँ. तो तुम्हें आई थिंक अक्टूबर तक का पूरा पोर्शन खत्म कर देना चाहिए, एंड एक बार ये पास पेपर्स टॉपिक वाइज सॉल्व कर लो. ओके. मतलब ऐसे कुछ टाइम नहीं रहेगा, यू जस्ट सॉल्व इट एट योर पेस. ओके. अपना टाइम लेके जस्ट कर लो वो अक्टूबर तक का. देन अक्टूबर में मैंने जो ये प्रीवियस पेपर्स थे उनको ऐसे किया, लाइक फुल लेंथ टेस्ट देने चालू किया, 3-3 घंटे के. रोज एक पेपर देने का, एंड पेपर देने के बाद जितना भी मार्क्स आया, यू शुड इवैल्यूएट इट कि कितना क्या गलत हुआ, मतलब उसमें क्या समझ गया. मतलब पेपर सॉल्व कर लिया और पेपर का फिर एनालिसिस करते रहो. हाँ करेक्ट. तो एक पेपर बहुत होता है, आई थिंक दिन का एक पेपर. उससे ज्यादा करने जाता तो मेरे से तो नहीं होता है, बाकी हो भी नहीं पाता. नहीं हो पाता. मतलब आई हैव आल्सो गिवन जेईई एडवांस माय सेल्फ. मतलब तब भी अपन वैसे ही करते थे. तूने भी जेईई का कोचिंग लिया होगा उस टाइम पे. एक पेपर कर लेते थे. उतना ज्यादा तो उतना ज्यादा के लिए किया भी ये नहीं के टाइम पे किया था. राइट. हाँ. तो अक्टूबर तक का वो हो गया. फिर उसके बाद 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए मैंने, और उसमें लग गया, लाइक हर एक में चालू हो गया फोड़ने को. एंड फिर एक कोई तो जो टेस्ट सीरीज था, उन्होंने कुछ ₹1 में ऐसे एक कंपाइल्ड प्रैक्टिस शीट्स दे दी. ओके. तो उसमें समवेयर अराउंड 3000-4000 क्वेश्चंस थे. ओके. क्वेश्चन वो उठा के क्वेश्चन बैंक काइंड ऑफ. तो उसमें उठ के लग गया मैं, लाइक वही करता था दिन भर. एंड वीकली टेस्ट होते थे क्लासेस के एज वेल एज जो टेस्ट सीरीज थी उनकी, तो वीकली होते थे, वो निकालता था. ओके. और फिर जनवरी आते आते ये पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म हो गया. फिर जनवरी में थोड़ा रिलैक्स मोड में आ गया कि थोड़ा बहुत फुल लेंथ. हाँ. तो जनवरी में रिवीजन करता था, देन एक दिन रिवीजन करता था, एक दिन पेपर करता था, ऐसे ऑल्टरनेट करने को ट्राई करता. बढ़िया. हाँ बेस्ट. हाँ. एंड फिर आई थिंक फेब 13 को था मेरा एग्जाम, तो फेब 13 तक का यही शेड्यूल था. बस फरवरी में मैं और थोड़ा रिलैक्स हो गया, लाइक एक दिन का बीच में ब्रेक ले लेता था ऐसे, जस्ट टू कूल डाउन. और फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. खुद को कूल डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी एग्जाम है ये सब. हाँ. एंड इन अ वे इट हेल्प, बिकॉज कैसे हो गया था, मैंने 2 टेस्ट दिए थे जस्ट बिफोर माय एग्जाम, एंड उसमें मेरा लाइक पैथेटिक परफॉर्मेंस हो गया था. दोनों इसमें एकदम पैथेटिक हो गया. एंड वो अभी एग्जाम भी एकदम पास में, तो आई स्टार्टेड पैनिकिंग. तो आई जस्ट गिव अप. आई वाज लाइक नहीं होने वाला है, छोड़ दे अभी. अगला 2 दिन चिल मारने का, थोड़ा रिविजन करेंगे और बस एग्जाम जाके दे देंगे, खत्म. बैकअप एक पड़ा हुआ है, तो बैकअप पे बाद में फोकस करेंगे एग्जाम के बाद. तो थोड़ा स्ट्रेस. हाँ. वो 2 दिन थोड़ा चिल मारा, तो इट हेल्प्ड आई गेस. वो 2 दिन में जाके फुटबॉल खेला. एंड हाँ, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक तुम्हारा एक एक्स्ट्रा हॉबी रखो, whoever is aspiring for. I think एक गो टू प्लेस रखो. हाँ. एक ऐसा जगह रखो जहां पर where you can go and just forget about everything, forget that you're appearing for whichever exam you're preparing for,
जो भी है सब भूल जाओ, यू आर कंप्लीटली एंग्रॉस्ड इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग. एंड आई थिंक तो मैं वॉक करता था इसमें. आई यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक, आई यूज्ड टू वॉक, आई यूज्ड टू रीड अबाउट पॉलिटिक्स. इधर उधर का सब फालतू नहीं करता था. एवरी डे 1 घंटा करना चाहिए. आई थिंक उतना Yes. डिसेंट हो जाएगा. Well बैलेंस थिंग्स आउट. very well said. हाँ. जिस टाइम पे तू गेट का प्रिपरेशन कर रहा था, मैं भी कैट की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे. हाँ. तो सेम थिंग, मतलब दिन का 1-2-3 एपिसोड देख लिया किसी सिटकॉम का, या एक शो का एक एपिसोड देख लिया. हाँ. थोड़ा घूम के आ गए, हाँ. थोड़ा खुली हवा में जाने का बाद में आ गया था कि लॉकडाउन चल रहा था मुंबई में. तो खुली हवा में जाने का जो टाइम था वो सितंबर अक्टूबर से शुरू हुआ था बेसिकली. एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, मतलब फेब में था तो मेरे को मिल गया वो टाइम पे घूमने को. नाइस, अमेजिंग, दैट्स नाइस. तो वो एक लाइक इम्पोर्टेंट चीज था कि कुछ एक हॉबी रखो अलग से. बाकी then it all depends on how hard you work for Of it. course. Like जितना तुमने प्रैक्टिस किया है, जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जितना अपने आप को वो स्पीड बढ़ाओगे, सब अपने आप क्लियर होता जाएगा. Yes, exactly. Very nice, Ashish. I think you have told us almost everything which someone would need to, prepare. All the best. Thank you for talking to us. And in case our viewers want to reach out to you, like would you mind sharing your email ID or maybe your Instagram name or something? हाँ, आई थिंक इंस्टा और फेसबुक पे मैं मिल जाऊंगा. इंस्टाग्राम पे आई हैव माय हैंडल नेम एज द लेंस आर्टिस्ट. तो आई डू सम फोटोग्राफी एज वेल. तो मिल जाऊंगा, या फिर मेरा नाम टाइप करो, इट्स क्वाइट यूनिक. आशीष तो यूजुअली मिल जाऊंगा मैं. LALWA. यू कैन रीच आउट. हाँ, चलेगा. करेक्ट. Young ones, young